الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الموعد الكريم. باوقار سامعین سنت، اسٹیج پر علماء اعظام کی ایک نورانی جماعت موجود ہے. بالخصوص اس پورے جلسے کی صدارت کرنے والی ذات مصلح قوم ملت حضرت علامہ و مولانا محمود صاحب قبلہ اور ہمارے اس علاقے دیار کے بڑے عالم دین ہمارے قوم ملت حضرت علامہ و مولانا عارف حسین صاحب قبلہ میرے استاد بھی ہیں، تشریف فرما ہیں. ان کے علاوہ دیگر علماء سنت قاری نوشاد صاحب قبلہ، قاری ابصار صاحب، نعمت القادری صاحب، حافظ مدثر صاحب، قاری عزت رضا صاحب، تمام علماء اعظام تشریف فرما ہے. اور ہمارے اس علاقے کے بڑی اچھی آواز کے مالکان شورائے اسلام حضرت شہنشاہ ترنم حضرت ماہی رضا کمالی، حضرت قاری ذکی انور نوری، حضرت نظر نواز اشرفی، حضرت انور حسین اور ان کے علاوہ دیگر شورائے اعظام وہ بھی تشریف فرما ہے. اور مجھ سے بیشتر آپ نے ایک بہترین خطاب علامہ ناصر صاحب سے آپ نے سماعت کی. میرے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے اس علاقے دیار کے بھی اور باہر سے آئے ہوئے خطیب علماء کی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. تھوڑی دیر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر آیا. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ آواز بلند جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اور ہمارے اس سیمانچل کے بلکہ اب تو پورے ہندوستان کے ایک بڑے نقیب حضرت علامہ و مولانا کونین رضا صاحب کشش پر نبی تشریف فرما ہے. واقعتاً ان کے اندر کشش ہے، ایک کھچاؤ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں تو جلسہ کی طرف حاضر آتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا، بارہا میرا مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت بہتر انداز میں اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے پورے جلسے کو سرگرتے ہیں. بڑی مبارکباد کے مستحق ہے. بہرحال کیونکہ یہ جو آج کی محفل ہے اس کا تعلق فیضان شب برات و تحفظ قبرستان اس کے تعلق سے. اچھا، جتنے سارے علماء نے اس محفل کو سجایا اور اس علاقے کے جتنے بھی مسلمانوں نے اس میں شرکت کی بانیان کی حیثیت رکھتے ہیں جو بنیادی طور پر اس میں شامل ہیں زیادہ تر علماء اعظام. میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ قاری ذکی انور صاحب ہم لوگ ایک ساتھ تھے بوا خالی کی طرف. میں نے کہا تھا کہ اگر شب برات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے بارے میں اگر چند باتیں آپ کو سننی ہو تو شب برات کی جو خاص شب برات ہے، یعنی وہ جو رات ہے اس رات میں پروگرام نہ رکھیں، اس سے پہلے رکھ لیں. آپ اس سے ایک دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے رکھ لیں تاکہ آپ تک صحیح پیغام پہنچے، ایک بہتر میسج پہنچے کہ آپ کو شب برات میں کرنا کیا ہے اور آپ کرتے کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، عبادات کس طریقے پہ کیے جائیں، وظائف کیا پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت، ان میں پھر خصوصی طور پر کچھ صورتوں کا انتخاب، یہ ساری چیزیں آپ کو سننا چاہیے. احادیث کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں علماء جو بیان کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ اس رات اگر آپ تقریر سنتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی رات تقریر سننے میں گزر جائے گی. جو روحانیت، جو استفادہ، جو فائدہ آپ کو اس شب میں حاصل کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر پائے. تقریر سننے میں اگر رات بیت جائے، گزر جائے، وہ خاص رات جو ظاہر ہے پھر آپ اس پہ عمل کس رات پہ کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ شب برات سے پہلے ہی ایسے کسی رات کا انتخاب ہو جائے جس میں ساری باتیں یا پھر چند باتیں شب برات کے تعلق سے آپ تک پہنچا دیے جائیں.
اس لیے میری آپ سے اپیل ہے تھوڑی دیر آپ اطمینان کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا، اس سے غور سے سن لیں، اور ان کے بعد میرے بعد جتنے بھی علماء آئیں گے انشاءاللہ آپ سب کو ان سے بھی سماعت کرنی ہے، وہ علماء اسلام بھی احادیث و کتاب اور فقہیات کی روشنی میں آپ تک مسائل و مسائل، دینی باتیں، شریعت کی باتیں، اسلام کی باتیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے شب برات یہ لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو شاید اسی سے مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شب برات کیا چیز ہے۔ شب مانے رات ہوتی ہے، علماء اعظم تشریف فرما ہے، برات کہتے ہیں چھٹکارا کو، نجات کو، یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات جس رات میں بندہ عبادت کر کے وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، وہ عذاب جہنم سے آزاد ہو جائے، ایک ایسی رات جس میں وہ عبادات، وظائف، قرآن مجید کی تلاوت اور پھر اپنے لیے نوافل کی کثرت، اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ اچھے امور انجام دے کر کے اور قبرستانوں میں جا کر فاتحہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے لیے دعائیں کریں اور سنیں اس رات کے بارے میں احادیث میں کیا آتا ہے، مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے یہ شعبان الموسم کی 15ویں رات کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے نہیں معلوم، آپ فرما دیں کہ شعبان کی یہ 15ویں رات کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ مریں گے وہ بھی لوہے محفوظ میں لکھ دیے جاتے ہیں، جس کو کتنا رزق ملے گا وہ بھی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سوچیں آپ فیلنگ کریں، یعنی آپ کی زندگی کے معاملہ آپ کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آئے گا، آپ کو کس کو موت آنی ہے، کس کی زندگی طویل ہونی ہے، کس کو بیماری میں مبتلا ہونا ہے، کسی شفا یابی ملنی ہے، کس کے ساتھ ناگہانی آفتیں یا بلیات حادثات پیش آنے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی رات طے ہو جاتی ہیں، اسی رات ساری چیزیں وہ لوح محفوظ میں لکھ جاتے ہیں، احادیث وغیرہ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنی مبارک رات ہے، اتنی اہمیت کی حامل رات ہے، پھر اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا موبائل کی دنیا میں پوری رات گزار کے اپنا وقت سمے برباد کر دینا چاہیے؟ کیا پھر اس قبرستان سے اس قبرستان گھوم کر کے اپنا وقت ضائع کر دینا چاہیے؟ یا پھر آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر کے اپنا سمے خراب کرنا چاہیے؟ نہیں صاحب، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کہتے ہیں، جس کے بارے میں احمد مختار فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی شب برات کی وہ رات ہے، وہ دن ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی رات کو تم عبادت کیا کرو، یعنی شب بیداری کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور شب برات یہ جو 15ویں شعبان ہے اس کے دن میں تم روزے رکھا کرو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، یہ کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب نے کہا، یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ کریم نے کہا۔ ہمیں حکم دیا ہے اس رات میں ہم عبادت کریں، ہمیں حکم ملا ہے ہم دن میں روزے رکھیں، لیکن بتائیے صاحب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن میں روزے رکھتے ہیں؟ شاید اللہ ماشاءاللہ جو لوگ عبادت کر لے جائے، لیکن حال کیا ہے آپ آدھا گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ نوافل پڑھتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ یا 1 بجے رات تک، آپ 2 بجے رات تک عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے صاحب؟ علاقے کا حال کیا ہے؟ اس کے بعد آدمی سو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ 2 گھنٹے عشاء کے بعد آپ بھی نوافل پڑھے، وہ 2 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور قبرستان پہنچ کر مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرے، پھر ایسا آدمی اگر فجر کی نماز ادا نہ کرے تو اس کے لیے افسوس ہے، اس کی عبادات ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس کے نوافل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے جس کے اوپر اس کی نمازیں باقی ہو، یعنی جو قضا نمازیں ہوں اسے ادا کی جائے، اگر وہ نوافل پڑھتے ہیں تو ان کے نوافل بھی قابل قبول نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اب سوچے صاحب نفل نماز آپ پڑھیں پھر فجر کی نماز ادا نہ کریں، اس سے پہلے آپ سو جائیں، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ کیا بینیفٹ ملا آپ کو؟ اتنی اہم رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، آپ
आपको ये चाहिए था कि आप इस रात इबादत करके अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर लेते, मुस्तफा करीम की सुन्नत को याद करते, परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफी चाह लेते, तलब कर लेते, इसलिए कि और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते, परवरदिगार मैं तो एक खताकार तेरा बंदा, मैं तो एक गुनाहगार तेरा बंदा, मैं तो एक सियाहकार तेरा बंदा, न जाने मुझसे कितनी गलतियां हुई, न जाने मुझसे कितनी बदकारियां हुई, न जाने कितनी वक्त नमाजें मैंने तर्क कर दी, न जाने कितने रमजान के रोजे हमने छोड़ दिए, हमारे पास ज़कात फैसला हमने अदा नहीं किया। परवरदिगार तेरा एक गुनहगार बंदा, काश कि तू इस मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा लेता, आंसू के चंद कतरे बहा लेता। सुन मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब कहते हैं कि जहन्नम की आग दो आंखों को नहीं छू सकती है, यानी उनमें से एक आंख वो है तो अल्लाह के खौफ से रोए, तो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाए, जिसकी आंखों से अल्लाह को याद करते हुए, जहन्नम के अज़ाब को याद करते हुए, अज़ाब कब्र को याद करते हुए अगर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, अल्लाह के हबीब कहते हैं ऐसी आंखों को जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। अब क्या चाहिए साहब कि आप इबादत करते इस रात में, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते, अपने गुनाहों को याद करते, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं। मोबाइल बाजी में पूरी रात गुजर जाती है, इस कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान टहलने में, यहाँ से बहादुरगंज जहाँ करा पता नहीं कहाँ टहलने में रात बीत गई, मोटरसाइकिल लेके यहाँ से वहाँ घूमने में आपको पैगाम लेना चाहिए, आपको मैसेज देना चाहिए साहब कि इस मुबारक रात में आप इबादत करते। सुनिए साहब, अल्लाह के हबीब अल्लाह ताला फरमाता है मोहम्मद हयातुद दुनिया इल्ला मतल गुरूर, यानी कि दुनिया भी जिंदगी धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है, ये मकरो फरेब की चीजें हैं, ये मकरो फरेब का सामान है। सुनिए आप पैगाम ले साहब, कितने ऐसे नौजवान हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो रमजान के रोजे रखते हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो ज़कात अदा करते हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी हज करते हैं। नहीं साहब, क्यों साहब? इसलिए कि आज जवानी का खुमार है, आज हुस्न पे गुरूर है, अपने चेहरे पे घमंड है, अपने लिबास अपने जिस्म पर घमंड है कि देखा जाएगा मरने के बाद क्या होता है, देखा जाएगा क़यामत के दिन क्या होगा, देखा जाएगा मरने के बाद क्या होता है। किसने देखा है आखिरत को, किसने देखा है अज़ाब जहन्नम को, किसने देखा है अज़ाब कब्र को? आज ऐसी फीलिंग हमारे ज़हनों में उत्पन्न होते हैं, आज ऐसे तसव्वुरात हमारे माइंड में इकट्ठा होते हैं। याद रखो साहब, ये जो जवान दिने चाहिए कि वो 5 वक्त नमाजी बन जाता, ऐसा जवान जिनके चेहरे पे हुजूर की दाढ़ी मुबारक होती, यानी सुन्नत मुबारक होती, ऐसा जवान जिसका किरदार हुजूर के नक्शे कदम पर होता, ऐसा नौजवान जिसकी इबादतें बुजुर्गों सल्फ़े सालिहीन के तरीके पर होती। लेकिन नहीं साहब, आज जवानी के गुरूर में है आज। और सुने, अल्लाह को अगर किसी की इबादत ज्यादा पसंद है, वह जवानों की इबादत पसंद है। जवानों की जिंदगी कहाँ गुजरती है? जवानों की जिंदगी बदकारी में, जवानों की जिंदगी ज़िनाकारी में, जवानों की जिंदगी सूदखोरी में, जवानों की जिंदगी और दूसरी चीजों में, वाहियात में, गलत वीडियोस देखते पूरी रात गुजार दिए, किसी गैर महरम से, किसी अजनबिया से बात करते, क्या 2 बजे रात, क्या 2:30 बजे रात, क्या 3 बजे, क्या फजर की अज़ान, हमने गैर महरम से बात करते हुए पूरी रात गुजार दी। आज के तुम्हें तौफीक मिल जाती, तू उठ करके उस रात में तू तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता, तू उठ के फजर की नमाज पढ़ लेता, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं मिली साहब। ज़कात फर्ज है, लेकिन दुनिया का खुमार ऐसा है, दुनिया तभी इस तरह गरीब है, पैसा कमाने का खुमार ऐसा है। ज़कात फर्ज है, लेकिन डरता है ज़कात अदा करूंगा पैसा कम हो जाएगा, मुनाफे में कमी आ जाएगी, ज़कात को तर्क कर दिया। 5 वक्त नमाज़ें फर्ज है, दुनिया के चक्कर में, दुनिया में मसरूफियात के चक्कर में बिजी रहने की वजह से इसने ज़ोहर की नमाज छोड़ी, असर की नमाज छोड़ी, मगरिब की नमाज छोड़ी, इशा के वक्त सो गए, फजर के वक्त उठे नहीं। यानी ऐसा नौजवान जिसके ऊपर माल दौलत है, जिसके पास प्रॉपर्टीज है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास जायदाद है, जिसके ऊपर हज फर्ज है, यानी वो सफर की इस्तिताअत रखता है, अच्छे सफर का इस्तिताअत रखता है, लेकिन वो हज अदा नहीं करता। जब जिंदगी, जब जवानी की उम्र ढल जाते हैं,
जब बुढ़ापा आ जाता है अब मायूस हो गया, अब ये सोचता है काश के मैं जवानी के दिनों में वक्त नमाजी होता, काश के मैं जवानी के दिनों में रमजान मुबारक के रोजे रखा होता, काश के मैं जवानी के दिनों में ज़कात अदा किया होता। अब जब पूरा हो गया, अब जब पैर थर्राते हैं, अब जब खड़े होने में तकलीफ होती है, अब जब कमर झुकता नहीं है, सही से रुकू अदा हो नहीं पाता, सही से कुरान की तिलावत कर नहीं पाता, सूरह फातिहा कायदे से पढ़ नहीं पाता, यानी अब जब कमजोर हो गया अब ये सोचता है मैं पक्का नमाजी बन जाऊं, रुकू में झुका नहीं जाता, अब नमाजी बनना चाहता है। जिंदगी भर पूरी जवानी वो अपनी तारीफ करता रहा, पूरा हो गया अब जाहिर है वह कमजोर हो गया, अब ये सोचता है दाढ़ी सजा ली जाए, यानी पक्का दीनदार बन जाए, पक्का शरीयत गुजार बन जाए, एक सच्चा मुसलमान बन जाए, एक सच्चा मोमिन बन जाए। सुने नौजवानों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेके आओ, अपने अंदर इनकलाब लेकर के आओ, अपने अंदर चेंजिंग लेके आओ। याद रखो इससे पहले कि तेरी जिंदगी में ऐसा समय आए, इससे पहले कि तेरी बुढ़ापे गालिब हो जाए, इससे पहले कि तू कमजोर हो जाए, इससे पहले कि तू सही से रुकू ना अदा कर पाए, इससे पहले कि तू सही से सजदा ना अदा कर पाए, इससे पहले कि तू चाहकर भी तू मस्जिद में जमात के साथ नमाज न पढ़ पाए, यानी बुढ़ापा गालिब है, चला नहीं जाता, कमजोर हो गए। जवानों पैगाम लेके जाओ, उससे पहले खुद को बदल ले, उससे पहले इनकलाब कर ले, उससे पहले जवानों जवानी की जिंदगी में मुस्तफा की सच्ची गुलामी इख्तियार कर ले, और दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और तेरी आखिरत में चमकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहब किबला तहसीनी। लेकिन नहीं हुआ, जवानी में चाहिए था इबादत गुजार बन जाते, जवानी में चाहिए था दीनदार बन जाते, जवानी में चाहिए था कि तकवा शार बन जाते, जवानी में चाहिए था आप परहेजगार बन जाते, लेकिन आपसे नहीं हुआ साहब। बुढ़ापा गालिब आया, आप सोचते हैं दीनदार बन जाते हैं, आप सोचते हैं पक्का नमाजी बन जाते हैं, आप सोचते हैं बुराइयों से दूर रहे, अब सोचते हैं कि मुस्तफा की शरीयत पे चले, अब गुमान करते हैं कि हुजूर के दीन पे अमल किया जाए, अल्लाह के अहकाम पर अमल की जाए। सुने साहब, अब सुने आजकल हमारे इस इलाके का हाल क्या है, से पूछे, उलमा से पूछे, वो बयान करेंगे। कल इस इलाके का हाल यह था कि जैसे ही शाबान का चांद निकलता, आदमी अपने घर में जिसे कुरान पढ़ना आता वह कुरान की तिलावत करते, जिसे तस्बीह पढ़ना आता वह तस्बीह पढ़ते, जिसे कलमा पढ़ना आता वह कलमा पढ़ते, जिसे दुरूद पढ़ना आता वह दुरूद शरीफ पढ़ते, यानी शाबान का चांद नजर आता, इधर कुरान मजीद की तिलावत, इधर तस्बीह व तहलील। लेकिन आज हाल क्या है, आज इस समय इस इलाके का हाल यह है कि आज किसी को तौफीक नहीं मिलती है वह एक बार अपने मरहूमीन के लिए पढ़ दे, आज तौफीक नहीं मिलती है कि वह 1000 कलमा अपने बाप दादा के नाम पे पढ़ दे, आज तौफीक नहीं होती है वह अपने दादी परदादा परदादी के नाम पर वह कुरान मजीद की तिलावत कर दे। क्यों साहब, मसरूफियात बढ़ गई, बिजी हो गए। अब सुने साहब, वो आपकी फैमिली के लोग, वो आपके परिवार के लोग जो आपसे पहले दुनिया छोड़ के चले गए, जो आपके मरहूमीन हैं, आपके दादा, आपके परदादा, आपके वालिद, आपकी वालिदा, अब जाहिर है उन्होंने जिंदगी बसर की आपके लिए, मकान छोड़ के गए आपके लिए, प्रॉपर्टी छोड़ के गए आपके लिए, बीघा बीघा जमीनें छोड़ के गए आपके लिए, दुकानें छोड़ के गए आपके लिए, सारी नेमतें वो आपके लिए छोड़ के गए। लेकिन आपका हाल क्या है, कभी बहनों के साथ झगड़ा जमीन के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए भाई का हक मार दिया, प्रॉपर्टीज के लिए किसी दूसरे का हक मार दिया, यानी जो मरहूमीन जो आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, जो मरहूमीन आपके लिए दुकानें जमीन जायदाद सारी चीजें छोड़ के गए, सुने आज वो कब्र की दुनिया में है, वो आपसे नहीं कहते मुझे 1 हफ्ता जमीन कब्रिस्तान में चाहिए, वो आपसे नहीं कहते मुझे कब्र की दुनिया में 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो आपसे नहीं कहते कि मुझे 2 बीघा जमीन कब्र की दुनिया में दे दे, नहीं साहब, वो आपसे आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपसे जमीन नहीं मांगते, आपसे पैसा पेनस नहीं मांगते। तुम्हारा हक था कि तुम उन मरहूमीन के नाम पर कम से कम एक पारा कुरान मजीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हदीस, फैज़ाने शबे बरात व तहफ़्फ़ुज़े कब्रिस्तान, हज़रत अल्लामा कारी तनवीर जलाली साहेब किबला, शहनशाह तरन्नुम हज़रत कारी अरशद अंजुम साहेब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस इलाके के बड़े खतीब, एक अच्छे खतीब, एक अच्छे आलिम, एक अच्छे हाफिज और कारी, अच्छी फिक्र रखने वाले अल्लामा तनवीर कादरी साहब जलाली वो तशरीफ फरमाए, वो आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद इनकी तकरीर होनी है। अब सुने, आखिर पैगाम लेके जाएं, आखिर मैसेज लेके जाएं आपके मरहुमीन, आपके परिवार, आपके परिवार के अफराद जो आपसे पहले गुजर गए, दुनिया छोड़ के चले गए, वो प्रॉपर्टी सारी चीजें आपके लिए छोड़ के गए, लेकिन आप उनके लिए एक पारा कुरान मजीद नहीं पढ़ पाते हैं, आप उनके लिए 1000 कलमा शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं, आप उनके लिए 500 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते हैं। ये कितने बड़े अलमिया की बात है, ये कितने बड़े गम की बात है, ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि आज इन नौजवानों का हाल ये हो गया, इस समाज के, इस इलाके के लोगों का ये हाल हो गया। सुने साहब, तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान है। आज आपको पता है हुकूमत की निगाहें कहाँ है? वो आपके वक़्फ़ की ज़मीन पर है। पता है हुकूमत की निगाहें कहाँ है? वो आपके मसाजिद पर है, वो आपके मकासिद पर है, वो आपके कब्रिस्तानों पर उनकी निगाहें हैं। दुश्मन ये चाहते हैं, दुश्मन की निगाहें हैं, शरपसंद लोग ये चाहते हैं वो आपके कब्रिस्तान की ज़मीन छीन ले, वो आपके मस्जिद की ज़मीन छीन ले, वो आपके मकासिद पर उठा दे, वो आपके मदारिस पे ताला बंद कर दे। यानी दुश्मनों की निगाहें हर तरफ से मसाजिद पर, कब्रिस्तान की ज़मीनों पर, मकासिद की ज़मीनों पर, खानकाहों पर, मदारिस पर दुश्मनों की निगाहें हैं। लेकिन आज आप यहाँ से पैगाम लेके जाएं। अब सुने साहब, इस इलाके के कब्रिस्तान का हाल क्या है, इस इलाके के कब्रिस्तानों का हाल क्या है? अल्लामा नासिर साहब ने भी कहा, हमने कब्रिस्तानों का हाल ऐसा बना रखा है, जानवर मानते हैं, उसी में जानवर पेशाब करे, उसी में जानवर गलाजत फैलाए, उसी में जानवर नापाकी फैलाए। सुने, सैयदना आरादत फरमाते हैं, जिस तरह जिंदगी में एक मुसलमान की इज्जत जरूरी है, इसी तरीके पर एक मुसलमान के कब्र की भी इज्जत जरूरी है। यानी आरादत फरमाते हैं कि उसके कब्र के ऊपर पैर न रखा जाए। ताज़ीम का मयार यह है, यानी तकरीम का मयार यह है कि किसी मरहूम के कब्र के ऊपर पैर न रखा जाए। लेकिन यहाँ तो जानवर चलते हैं, यहाँ तो बकरियां चलती है, यहाँ तो जानवर बांधे जाते हैं कब्रों के ऊपर, वो गलाजत फैलाए, वो पेशाब करे, वो तमाम चीजें नापाकी फैलाते रहे। सुने, अल्लामा कौनैन साहब मौजूद है। मैंने नेपाल के एक जलसे में कहा था, इसी सीमांचल के वाकया है, अफसोसनाक है, दर्दनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मेरे पास भी पहुंचा, मैंने देखा है 1-2 लड़कियां कब्रिस्तान के ऊपर टहलती हैं, यानी बाप दादा नीचे सोए हुए हैं, उसके परिवार के लोग नीचे सोए हुए हैं, उसकी वालिदा शायद अगर दुनिया में ना हो, वो दुनिया में ना हो तो नीचे सोई हुई है, लेकिन 2 लड़की वह कब्रिस्तान के ऊपर टहलती है। एक आवारा मिजाज लड़का जाता है और कब्रिस्तान के ऊपर जाकर उससे सेल्फी लेता है, लड़कियां लड़के से मुलाकात करती है। अब जरा सोचिए साहब, कितना मेजर हमारा कर गया, हमारी कौम में, हमारी नस्लों में कितने बेगैरत लोग पैदा हो गए कि वो जिंदगी में बाप दादा पे खुश न रह सके उनके गुनाहों फरेब की वजह से, लेकिन मर के दुनिया तक चले गए। तो आज कब्रिस्तान में भी वो महफूज नहीं है, वहां भी जाके गंदगी फैलाए, वहां भी जाके बुराई फैलाए। पैगाम लेके जाओ कि तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान ये महफिल है, पैगाम लेके जाओ कि अपने बाप दादा, अपने आबा अजदाद जो कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, उनके कब्रों के ऊपर जानवर न बांधो, उनके कब्रों के ऊपर गलाजत न फैलाओ। सुनो, जो पहले कब्रिस्तान की तौहीन करते हैं, मुसलमानों के कब्रों की तौहीन करते हैं, जो पहले किसी गैर महरम से, किसी अजनबी से मुलाकात करे, फोटो ले, सेल्फी ले, वो अपने आप को समझे, आखिरत को पेश नजर रखे। आज जवानी है, इतना की ऐसी बुराइयां कर लेती है, जवानी का खुमार बीत जाएगा, मौत आएगी, तू कब्र में जाएगी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने कैसी गंदगी की थी, मैंने कैसी घटिया हरकत की थी, मैंने किसी की बदकारी की थी। इसलिए मैं और तुमसे कहना चाहूंगा, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, बुराई से महफूज रहें, अपने असास की कब्रों की हिफाजत करें, उनकी इज्जत को अपमान न करें, कब्रिस्तान की हिफाजत करें। बस ये चंद पैगाम मैंने आप तक पहुंचाए। आखिरी बात, लास्ट बात, चंद बातें सुने। अल्लामा शफीक अहमद शरीफी साहब, जिनके बारगाह में मैंने रहकर इफ्ता का भी कोर्स किया है, फजीलत भी मुकम्मल की है, जो काजी शहर इलाहाबाद है, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें। अल्लामा शफीक अहमद शरीफी साहब और लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते हैं कि अगर जो शाबान के महीने में, यानी रमजान से पहले इस पूरे महीने में किसी भी दिन या फिर पूरे दिन में आखिरी तारीख तक जो 3000 मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं हश्र के मैदान में जरूर उसकी
मुस्तफा करूंगा। क्या चाहिए साहब? आमीन। 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें इस महीने में, आखिरी तारीख तक रमजान से पहले जरूर पढ़ें, ताकि अपने अमाल में तब्दीली लेके आए। और अल्लामा शफीक अहमद शरीफी साहब लिखते हैं कि किताबों में आता है, उलमा बयान फरमाते हैं, जो आदमी 14 शाबान को, यानी जिस दिन 3 तारीख को जो आदमी असर बाद किबला रुख होकर के असर की नमाज के बाद सूरज डूबने से पहले 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े, तो लिखते हैं कि उसके 40 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितना बेहतर वजीफा है, कितना बेहतर पैगाम है। इन चीजों पे अमल करिए। कुरान मजीद जहां तक हो सके पढ़ते जाइए। बल्कि किताबों में आता है, अगर कोई सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़े तो किताबों में आता है अल्लाह ताला उसकी 70 जरूरत दुनिया की पूरी फरमाएगा और 70 जरूरत आखिरत की पूरी फरमाएगा। इसलिए नवाफिल जितना हो सके पढ़िए। नवाफिल से बेहतर है जो आपकी नमाजें छूट गई हैं, उन नमाजों को कज़ा पढ़िए, अदा कर लीजिए। पूरी रात इबादत करें, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करें, इनकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। बहुत सारे उलमा इज़ाम हैं, शोरा इज़ाम है, ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब जलाली कई अरसे दराज के बाद इनकी तकरीर सुनने का हमें मौका मिलेगा, मैसेज आया है, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फीलिंग करता हूँ आज के